Okay, so let us continue with the part that we have here left with yesterday. So arithmetic operator, comparison operator, assignment operator, bitwise operator, then logical operators. And yes, with logical operators, we are further going on with the other operators which are available. So let us understand those also. There are something also called as a membership operator. Okay, let me just change the pen color. Yeah, membership operator and identity operator. It will come and below over here. But there are some of the operators which are called membership and identity operators. Now, how they work or what exactly the requirement is that? Now, for example, from this Python, if I write like this is the name of Python that I am looking for. And what I want is that I want to check whether this Y, okay, this is a smaller Y, let's say lowercase y, this is capital Y. Okay, I will write it like this so it will not make any confusion. This Y, okay. Now, what I'm doing over here is that I want to check whether this special character, not special character, this character is it available in my particular string or in my particular data, that is, or in my particular value which is provided to me. Is this value anywhere belonging to this? Is it? If there is, or if this value is inside this name, it will say yes, you have, it will become true. That's why we choose in. That's why we choose in. So is Y inside this Python? Is it P? Not match. Is it Y? Again, Python is a case sensitive. So small case Y, lowercase y and uppercase Y will not get matched. T obviously will not, H will not, O and N will not also. So you don't have. That means you will get false an answer. But in other scenario, if this would have like this, P, Y, again, okay. P, Y, THON. Let's for example, if every one of it was, again that could be question, सब capital होना चाहिए था क्या, पूरा नहीं, not required, इसको भी हटा दो. Anyhow, सिर्फ अगर उसमें से Y कैपिटल होता तो क्या होता, पहले Y P को चेक किया होता, is it matching? No. Is it Y? Yes, that it is. That means this is matching. Why? Y in Python. इस तरह से मुझे चेक करते हैं. So यहाँ पे क्या है आपका Y which is in a smaller case, is it in Python string? ये जो एक string है, क्या आपके पूरे Python के string में कहीं पे भी available है क्या? It checks. If not, it will give you false. If yes, it will give you true answer. इसको रन करके देखो, देखो true. Yes, it is there. यही Python जो एग्जांपल हमने लिया था, कैपिटल Y रन करोगे, it will get false. अगेन नीचे है देखो, इट विल चेक, दूसरा वाला जो अभी हम बात कर रहे हैं, y इन पाइथन, ये जो ट्रू है, y इन पाइथन एंड l इन पाइथन, मतलब एक ही के साथ. ऐसे नहीं कि भाई आप एक ही चेक कर सकते हो एक ही बार में, ऐसे नहीं है. आप मल्टीपल वैल्यूज एक साथ में एक लाइन में चेक भी कर सकते हो. जैसे एक इनपुट दे दिया, कॉमा कर दो, एक दे दिया, ऐसे करके कॉमा कॉमा करके 2 3 4 आपको देना है, वो भी आप ले सकते हो चेक करने के लिए. अगेन इसको रन करके देखो, ट्रू फॉल्स आंसर आ जाएगा. P in Python ऑब्वियसली चेक करोगे तो ये P लोअर केस है, ये P अपर केस है. सो इट इज वेरी मच एसेंशियल कि आप Python के केस सेंसिटिव्स को समझो. ओके, यस, P over here and P over here matches, so it is there. now जैसे याद रखिए, ये क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर. मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है, उस लिस्ट में जो भी आपका एक लिस्ट है या फिर जो भी आपका डेटा आपने पुट कर रखा है, इसके अंदर में कोई भी एक बाहर का जो आपने चेक करने को किया है, इसके अंदर में कहीं वो मैच होता है कि ये चेक करता है. दैट इज मेंबरशिप. Whereas when I say identity operator क्या करता है, it simply checks this object, is it equal to, यहाँ पे in है, यहाँ पे is है. is क्या करता है, is this value is equal to this value. जैसे हम दो is equal to use करते हैं, it checks comparison operator, यहाँ पे वही है, is nothing but comparing this value to this value. If it is equal, जैसे 1 और 2 है, which is not equal, false आएगा. If this becomes again 1, तो यस इट इज इक्वल, जो आपको यहाँ पे ट्रू करके देगा. सो इज राइट साइड वैल्यू इज इक्वल टू लेफ्ट साइड वैल्यू, वेयर एज इज राइट साइड वैल्यू इनसाइड द लेफ्ट साइड वैल्यू, ये करके दोनों में चेंजेस है. सो इनसाइड यहाँ पे है, सॉरी इनसाइड अंदर के लिए है, और इज क्या उसके कंपैरेटिव में है वो चेक करने के लिए यहाँ पे.
सो वाई इज पाइथन, यस ऑब्वियसली वाई कभी भी पाइथन पूरा नहीं हो सकता है, सो आपको फॉल्स मिलेगा. बट यस 1 इज 1, 2 इज 1 नहीं, ऐसे नहीं. सो यू विल गेट ट्रू फॉल्स ट्रू, सॉरी फॉल्स ट्रू फॉल्स. ओके, नाउ अगेन y इज इक्वल टू सेम, जैसे इज क्या है यही चीज यहाँ पे आप रन करोगे देखो लॉजिकली तो यही मिलेगा, देखो फॉल्स होगा. ना यहाँ पे इतना बड़ा एरर क्यों आया है, क्योंकि एरर की जगह वो बोलता है कि इट वाज अर्लियर व्हिच यूज्ड टू बी वर्किंग ओवर हियर बट नाउ इज बीन रिप्लेस्ड विथ दिस टू इक्वल टूज, so you have to use this. ऐसे नहीं कि आउटपुट नहीं आएगा, बट अगेन देयर विल बी दिस नंबर ऑफ एरर्स, ऐसे दिखेगा वो. एरर नहीं है, बेसिकली वार्निंग्स है. ओके, सो इज नॉट, 1 इज नॉट 1, हेलो हाय हेलो इज नॉट हाय हेलो. इसका मुझे आंसर बताइए, क्या है आंसर इन दोनों का बताइए. फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू. फॉल्स एंड फॉल्स आएगा सर. किसी ने इसको वोट दिया है, किसी ने इसको वोट दिया है. फॉल्स फॉल्स आएगा सर दोनों. ओके, सर वो सीक्वेंस में मैटर करता है ना, मतलब इनके सामने अभी ऊपर वाले में 2 पाइथन थे, पाइथन इज पाइथन. अगर सेकंड वाले पाइथन के पहले पी के पहले स्पेस दिया वाइट स्पेसेस, फिर भी वो एरर देगा ना. इन वाले में बोल रहे हो आप. ये इज पाइथन. इसमें तो y डायरेक्टली, वो तो ये देखो यहाँ पे तो क्या करता है वो एरर ही देगा, क्यों, ये पूरे y को कंपेयर करता है पूरे पाइथन से. फिर आप यहाँ पे स्पेस दो, स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी दो, वो क्या करता है इस y को पूरे पाइथन से कंपेयर कर रहा है. यस यस, नहीं नीचे वाले में वो यहाँ पे, पाइथन इज पाइथन. यहाँ पे तो ये जो है कंपेयर कर रहा है, देखो यहाँ पे क्या है पी वाई टी एच एन, ये पी वाला जो है ये लोअर केस है, ये वाला पी वाला ये कैपिटल केस कैपिटल है. पी है. हाँ, केस चेंज हो गया ना यहाँ पे, इसके से फॉल्स आया. सर यहाँ पे सो कुछ फॉल्स ट्रू लोग, आएगा, फॉल्स ट्रू. अच्छा पार्टी चेंज हो गई, फॉल्स ट्रू में आ गए. यस सर. ठीक है, एनी हाउ आंसर यहाँ पे फॉल्स ट्रू है. उसका रीजन देखो यहाँ पे, बेसिकली नॉट जब भी हम यूज करते हैं तो इतना ध्यान रखना, बिकॉज वी ऑलरेडी आर डिक्लेयरिंग, वी हम क्या कहते हैं पहले डिक्लेयर कर रहे हैं कि भाई 1 इज नॉट 1, भाई 1 तो 1 है, ये आपका जो स्टेटमेंट इट फॉल्स है. हियर हाय हेलो इज नॉट हाय हेलो, हेलो हाय करेक्ट है, हाय हेलो इज नॉट हेलो हाय, बिकॉज यहाँ पे हाय पहले फिर हेलो, यहाँ पे पहले हेलो वहां पे हाय, सो दोनों में डिफरेंस है, सो इट्स नॉट इक्वल. बेसिकली है क्या, आप लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करते हो राइट हैंड साइड से डायरेक्टली पूरा. ये कहाँ पे इज जब यूज करते हैं, वेरएज हम जब इन यूज करते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीज है क्या वो मेरे राइट हैंड साइड में कहीं अवेलेबल है या फिर से मैच होता है क्या, वो चेक करता है. ओके, सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन मेंबरशिप ऑपरेटर एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर. सो हियर आइडेंटिटी इज फॉर आइडेंटिफाइंग वेदर दिस मैचेस और नॉट. एंड अगेन ये जो इज नॉट है पहले होता था, अभी डिकैप्रिकेटेड हो चुका है उसका. अगेन अभी जान दो क्या बोलना वर्ड, वो डिकैप्रिकेटेड हो चुका है, बट ओके यूज नहीं होता है. ये है जो नॉट 1 नॉट 1, 1 नॉट 1 मतलब क्या, 1 जैसे हमने ऊपर लिखा है इज नॉट 1, वही जो लिखा है, और यहाँ पे वही जो मेथड लिखा है, इससे होगा क्या, बस आपको ये वार्निंग्स नहीं आएंगे, बाकी द लॉजिक ओवर हियर इज सेम, फॉल्स ट्रू. ओके, तो वैसे या बोलिए. इन इज नॉट का एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इक्वल टू साइन है, एंड इज का सिर्फ इक्वल टू साइन है. तो वैसे इन जो आपने बताया अभी, उसका भी कोई है क्या सिंबल ऐसा? नहीं, इसके इसका इनमें क्यों नहीं है, क्योंकि ये आपके डेटा का अंदर है, जो आपके पूरा है ना पाइथन इसके अंदर जाता है ना, सो इसलिए ओके, इनको कोई सिंबल नहीं दिया है. ठीक है. ओके, इन एंड क्योंकि नॉट इन अलग ही है फिर. हाँ, फाइन. that's right. ओके, नाउ डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में कुछ जानते हैं. अगेन आपको ऑलरेडी पता है, जब हम बात करते हैं एक सिंगल वैल्यू, और जब हम बात करते हैं 1 डायमेंशनल वैल्यू, और जब बात करते हैं 2 डायमेंशनल वैल्यू, ये है क्या, फॉर एग्जांपल व्हेन आई से ओनली सिंगल वैल्यू, इट इज कॉल्ड लेट्स से इट इज कॉल्ड
क्या था ये, स्केलर। ओके, इसे कहते हैं सिंगल वैल्यू, वन वैल्यू। व्हेन आई टॉक अबाउट लेट्स से वन डायमेंशन वैल्यू, एक डायमेंशन वैल्यू की बात करते हैं, वन डायमेंशन वैल्यू, इट इज लेट्स से, इसको हम कहेंगे कुछ तो गड़बड़ हो रहा लग रहा है, एक सेकेंड ना, स्केलर, वेक्टर एंड एरे। स्केलर, वेक्टर एंड एरे। एरे तो ठीक है, दो डायमेंशन है, वेक्टर भी वही है बेसिकली। क्या कर, चलो इसको छोड़ता है, मैंने अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, बाद में वापस कभी आता पता नहीं चलेगा। ठीक है, एनीहाउ बेसिकली वो बता देता हूँ मैं। जब मैं सिंगल, कोई भी एक सिंगल वैल्यू की बात करते हैं, ओके, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट सिंगल वैल्यू, सिंगल वैल्यू, ओके, ये यूनिट वैल्यू है, इट्स यूनिट वैल्यू। ओके, यूनिट वैल्यू वन वैल्यू से डिनोट किया जाता है। एंड वी टॉक अबाउट, और वन यूनिट जो होता है, एक सिंगल वैल्यू, इसका कभी कोई डायमेंशन नहीं होता है। ओके, इट डज नॉट हैव एनी डायमेंशन। कभी भी ग्राफ में भी आप एक यूनिट वैल्यू ऐसे इतना दिखेगा ना, सिर्फ इतना, इतना ही दिखेगा ना, इसका कोई एक्स एक्सिस होता है ना वाई एक्सिस, इट डज नॉट हैव एनी डायमेंशन, इट्स अ सिंगल वैल्यू, नथिंग ओवर हियर। ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट बेसिकली, लेट्स से कि हम सिर्फ एक एक्स वेरिएबल के बारे में बात कर रहे हैं, ओनली एक्स वेरिएबल। इसमें क्या होगा फिर, एक्स वेरिएबल, लेट्स से अगर ये एक्स एक्स में, तो इस तरह से कन्वर्ट होगा। इस एक्स वेरिएबल के अंदर में हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 n नंबर ऑफ नंबर्स होंगे। बट अगेन ये क्या है, एक डायमेंशन, इट विल वर्क ऑन ओनली one dimension, where if you plot this value over here in the graph, you will see that the data might fall like this, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करके ऊपर ऊपर ऐसे एक सिंगल डायमेंशन में फॉल होगा, एक ही डायमेंशन, इसी का डेटा ही है, ऐसे सिर्फ एक एक एक्सिस का। यहाँ पे y कोई किसी तरह काम नहीं करेगा, नॉट रिक्वायर्ड। वेयर एज, और यही केस x का है, वैसे ही y का भी हो सकता है, जहां पे भी सिर्फ एक एक्सिस, अब y पकड़ तो ये ऐसा पकड़ लो, आइदर वर्टिकल और आइदर हॉरिजॉन्टल, कोई एक वैल्यू कंसीडर करो, तो उसे हम वन डायमेंशन कहते हैं, विच इज 1D, वन डायमेंशन। When you talk about 2D, 2D मतलब क्या है again, where you have x also, where you have y also. So in this graph, if you do a changes a bit, x एक्सिस भी रहेगा वहां पे और आपके y एक्सिस भी रहेगा। मतलब x एक्सिस में लेट्स से कि 10, लेट्स से कि 4 है, तो अगर ऐसे डेटा डिवाइडेड है, तो लेट्स से x एक्सिस में 4 है, तो 4 का है 1 2 3 4 4, ओके, y एक्सिस में 6 है, तो कहाँ आएगा ये 4, 1 2 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 यहाँ पे। तो विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू यू विल गेट दिस पॉइंट वेयर यू हैव 2D। अब 3D मतलब क्या, अगेन 3D भी होता है, ऐसा नहीं होता है। विजुअलाइजेशन बेसिकली हम 2D से मैक्स टू मैक्स 3D में ही जाके करते हैं, 3D में बहुत कम करते हैं। 2D इज मच मोर इनफ फॉर एनीवन टू अंडरस्टैंड, क्योंकि 3D से ज्यादा ऊपर जाओगे तो वो समझ में नहीं आएगा। क्यों, 3D के बाद में देखो डेटा कुछ आपको इस तरह से दिखेगा, इफ यू लुक ओवर हियर, ये 2D हो गया, ये 3D इस तरह से ऐसे जाएगा। जब 3D की बात करते हैं ना, तो हमेशा ध्यान रखना, इफ यू आर पुटिंग सम वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू 3, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक पॉइंट करता हूँ, ये यहाँ पे ऐसे डॉट आया, अब आप देखोगे तो सामने से अगर देखोगे तो हाँ भाई एक्स एक्सिस में आपको यहाँ पे दिखेगा कि भाई ये यहाँ से ऐसे 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 करके यहाँ पे आ रहा है, वाई एक्सिस में यहाँ से यहाँ कहीं आ रहा है। बट यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से ये नहीं बता पाओगे कि ये इधर है या इधर है, सॉरी यहाँ से नहीं बता पाओगे, यहाँ से देखोगे तो हाँ, आइदर दिस इज ऑन द लेफ्ट साइड और राइट साइड। अभी आते हो तो आपको दिख गया ना कि भाई ये ऊपर से, सॉरी नीचे से कितना ऊपर है, और उसके इस वाई एक्सिस से कितने आगे ही दिख रहा है। बट ये सामने से जब यहाँ से देखोगे तो ये आपके तरफ है या पीछे तरफ है, ये नहीं देख पाओगे, तो आपको यहाँ से देखना पड़ता है। तो 3D में ये प्रॉब्लम होता है। अगर आप 4D कर दोगे तो भाई 4D में तो फिर मतलब बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर तो कहाँ कहाँ से क्या आएगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो बेसिकली ज्यादा से ज्यादा हम 3D में ही ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन वगैरह काम करते हैं। अगेन वी डू नॉट गो फॉर 3D। So if you're talking about 2D, 2D simply means two dimensions. जैसे स्कैटर प्लॉट है, स्कैटर प्लॉट कैसे होता है,
एक्स एक्सिस भी होता है, वाई एक्सिस भी होता है, तो आपके प्लॉट्स ऐसे दोनों जनरेट होते हैं और दोनों में क्या पता चलता है, रिलेशनशिप। टू फाइंड आउट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स और टू let's say columns, we do scatter plot which is based on 2D, whereas अगर आपको किसी एक ही कॉलम में वेरिएंस फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड डिवीएशन करना है, तो एक ही पर्टिकुलर कॉलम लेते हैं, तो वहां पे क्या होता है, एक ही कॉलम का हम रेफरेंस लेते हैं, सो दैट इज 1D। इज इट क्लियर? यस सर। नाउ Yes. array over here is nothing but in numpy, array जो होता है ये numpy के बेसिस में आता है और array को ही हम 2D कहते हैं। So array is created in Python by importing array module which is again Python program से ही है, this method, this details आते हैं। Again 2D array ये सब चीजें का एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया है। ओके, दिस इज अगेन फॉर द सेल्फ स्टडी पर्पस, ये आपका खुद का ही ये करना होगा। हाँ, पाइथन में यूज होता है ऐसा नहीं है, बट इसके अलावा पांडास करके है जो बहुत आसानी से काम होता है, सो वो हम करने वाले हैं। बट यस, फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस यू हैव टू गो थ्रू दिस, सैटरडे संडे जरूर यूज करना है इसको, रन करके देखना आउटपुट क्या आता है, कैसे आता है, यू हैव टू मेंशन दैट। नाउ अभी आपको मैं इंस्टेड ऑफ गिविंग यू ऑल दिस डिटेल्स ऑन लाइब्रेरी बेस, अभी इंपोर्ट करके जो है मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, पहले पाइथन में कैसे होता है वो जानते हैं। ओके, सो इन पाइथन वी हैव डेटा स्ट्रक्चर्स, जैसे ऊपर हमने एरे देखा था, जैसे एरे होता है, सीरीज होता है। हाँ, एरे मतलब क्या है, एरे बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ 2 डायमेंशन, जिसमें एक्स वाई दोनों आते हैं। व्हेन आई टॉक अबाउट सीरीज, सीरीज मतलब क्या है, कोई भी एक्स, आइदर एक्स और वाई, या तो एक आपका कॉलम, एक या तो आपका एक एक्सिस रहेगा एक, या तो एक एक्सिस या तो वाई रहेगा, दोनों में से कोई भी एक, तो जो भी स्टोर करेगा एक ही डायमेंशन को उसे हम सीरीज कहते हैं, और जो दो करता है उसे एरे कहते हैं, और एक सिंगल वैल्यू को हम कहते हैं स्केलर। ये सब याद आएगा ना, सिंगल वैल्यू को हम कहते हैं स्केलर। स्केलर मतलब क्या है, सिर्फ एक वैल्यू, सिंगल वैल्यू स्केलर। दो डायमेंशन, 2 डायमेंशन को कहते हैं, क्योंकि बिकॉज दिस इज 0 डायमेंशन, इसमें डायमेंशन है 0D, 0D लिखते नहीं है बट विदाउट डायमेंशन। 1 डायमेंशन 1D फॉर सीरीज और 2D फॉर एरेज। तो यहाँ पे पाइथन में जैसे ऊपर में आपने देखा कि मैथमेटिकल बेसिस में है ना, एरे सीरीज ये चीजें जैसे होती है, वैसे ही पाइथन में भी कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर मतलब कौन से होते हैं, लिस्ट, देन टपल, सेट, डिक्शनरी, DICT इसको शॉर्ट में लिखते हैं, डिक्ट। आपको छूटा है क्या, फ्रोजन सेट, सेट करके एक होता है और फ्रोजन सेट भी एक होता है, फ्रोजन सेट। हाँ, दैट वुड बी ओके, ये तो नहीं है ना। ये सब चीजें है क्या, वर्कआउट कैसे करते हैं, कैसे होता है, लेट अस अंडरस्टैंड। ठीक है। स्ट्रिंग में स्लाइस करने का है, पहले स्लाइस के बजाय मैं आपको लिस्ट पहले बताता हूँ। इन पाइथन हम जब भी लिस्ट के बारे में बात करेंगे, whenever we'll talk about list has some characteristics। जो भी डेटा स्ट्रक्चर ये बनता है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा है डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स है जो पाइथन में बनते हैं, तो एक दूसरे से डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे, हम कैसे समझ पाएंगे कि जो हमारे सामने डेटा है वो लिस्ट वाला है डेटा स्ट्रक्चर, वो टपल है, वो सेट है, वो डिक्शनरी है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि लिस्ट को हम कैसे देखते ही बता सके, टपल को कैसे कर सके, सेट को कैसे करें, कैसे डिक्शनरी को पहचान सके। सो जब हम बात करते हैं लिस्ट की क्या है स्पेशल, इन सब की अलग अलग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज है, तो हम पहले प्रॉपर्टी समझते हैं। whenever we talk about list and whenever we are going to declare the list, हमेशा करते हैं उसे हम स्क्वायर पैरेंथेसिस, सॉरी नॉट स्क्वायर पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रेसेस। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट से हम उसे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर हमें क्या कर रहे हैं हम ना, लिखने के लिए तो देखो मैं लिखी ली जो इन्फॉर्मेशन पुट किया है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ओपन एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस में, इजंट इट, इसको मैं कर्ली ब्रैकेट में भी लिख सकता हूँ, बट इन पाइथन एवरी
closing every brackets that you use with a different